आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। आम आदमी पार्टी लीडर्स ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी समन और इंतकामी सियासत के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बंगाल के कैंपेन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ईडी की टीम किसी बीजेपी के नेता मंत्री के घर नहीं जाती है? चुनावों के दौरान या उसके पहले भी बीजेपी के मंत्रियों के यहाँ छापे नहीं पड़ते हैं। चुनावों को छोड़िए, विपक्षी नेताओं के यहाँ पड़ने वाली छापों का इतिहास और संदर्भ देखेंगे तो पता चलेगा कि ईडी को अब किसी आलोचना से फर्क ही नहीं पड़ता। क्या यह मान लिया जाए कि चुनाव होगा तो विपक्ष के नेताओं और उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापे पड़ेंगे? क्या इसका इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए होने लगेगा? सही में ईडी और बीजेपी के मंत्रियों, नेताओं और उनके फाइनेंसरों का पता नहीं मालूम है। ऐसा हो गया है कि बीजेपी की तरफ के खड़े सारे लोग पाक साफ हैं या उन्हें जांच से लेकर जांच एजेंसी तक से संपर्क सुरक्षा दे दी गई है कि छापा आपके यहाँ नहीं पड़ेगा। पिछले महीनों में कुछ राज्यों में विपक्ष पर ईडी की रेड की खबर इतनी आम हो गई है कि अब खबर बनती भी नहीं है। 4 ऐसे राज्य हैं जिन पे चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष पर रेड करके उसे चुप कराने वाले धमाके की कोशिश हो रही है, मगर उसी विपक्ष से इसके खिलाफ आवाज भी आ रहे हैं। ईडी এবং সিবিআই কে বারবার ব্যবহার করা হচ্ছে আপকে শেষ করে দেওয়ার জন্য। এই ঘটনাটাকে বোঝাতে গেলে আমাকে একটু আগে 2015 থেকে শুরু করতে হবে। 2015 যখন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার হয় দিল্লিতে, তখন থেকে কিন্তু সিবিআই এবং ইডির দ্বারা আমাদেরকে প্রত্যেক দিন জানানো হয়েছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর আবাসে, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে প্রত্যেকটি জায়গায় একটা একটা করে রেড দিনের পর দিন করা হয়েছে, যার ফলস্বরূপ ইডি সিবিআই আজ অব্দি কিচ্ছু দেখাতে পারেনি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দিল্লি ছাড়িয়ে যখন পাঞ্জাব এবং পাঞ্জাব ছাড়িয়ে গোয়া, গোয়ার পরে গুজরাট এবং তার সাথে যখন দিল্লি কর্পোরেশনের অবধি বের করে দিল রাজনৈতিকভাবে বিজেপি, ওখানকার জনগণ বিজেপি এইটা সহ্য করতে পারছে না। এইটা প্রতিহিংসার বদলা নেওয়ার জন্য তারা যে কি করছে, আম আদমি পার্টিকে ধূলিসাৎ করার চেষ্টা করছে এবং রাজনৈতিকভাবে আম আদমি পার্টিকে শেষ করার প্রচেষ্টায় ওনারা বেঁধে উঠেছেন। এটা একটা ষড়যন্ত্র এবং এটা একটা পরিকল্পনা করে করা হচ্ছে যাতে আগামী দিনে যে ধরনের রাজনীতি অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং আম আদমি পার্টি করে, সেই ধরনের রাজনীতিকে কোনোভাবে বিজেপি কাউন্টার করতে পারছে না। যার দরুন কি হচ্ছে, বারংবার আমাদের নেতাদেরকে ডেকে হ্যারাস করা হচ্ছে। আমরা এর আগে দেখেছি সত্যেন্দ্র জৈন, যে লোকটা মহল্লা ক্লিনিকের কনসেপ্ট দিল পুরো বিশ্বকে, বিশ্বের দরবারে যেটা প্রশংসিত হলো, সেই লোকটাকে আপনি তুলে জেলে ভরে দিলেন। তার বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোনো এভিডেন্স সিবিআই ইডি কোর্টে সাবমিট করতে পারেনি। তারপরে আমরা কি দেখলাম, যে মানুষটা ভারতবর্ষের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব আনলো, সেই মানুষটাকে ধরে আপনি জেলে ভরে দিলেন এবং তার বিরুদ্ধে আজ অব্দি 1 টাকার দুর্নীতির আপনি প্রমাণ সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত দিতে পারেননি। এবং এখন যখন দেখছে যে না, যেভাবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জনপ্রিয়তা দেশব্যাপী বাড়ছে, প্রত্যেকটি জায়গায় যেখানে যেখানে আম আদমি পার্টি গেছে, যেখানে যেখানে অরবিন্দ কেজরিওয়াল গেছে, মানুষ প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমাদেরকে সমর্থন জানিয়েছে এবং সেই জনসমর্থনটা দেখে মোদী সাহেব ভয় পেয়েছে। যার দরুন কি করছে, মোদী সাহেব আজকে ইডি এবং সিবিআই দ্বারা, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, ইতিহাসে মনে হয় কোনোদিন হয়নি যে একটা নির্লজ্জ কেন্দ্র সরকার সে ভোটের বৈতরণী পার করতে চাইছে ইডি আর সিবিআই তাদের ভর করে। আপনি 10 বছর শাসন করেছেন, আজকে আপনার কাছে কি এজেন্ডা আছে, আপনি মানুষকে কি দিয়েছেন, আপনি কি দেবেন, সেটা না করে দেবেন। আপনি রোজ কি করছেন, আপনি রোজ যারা ভালো কাজ করছে আম আদমি পার্টির নেতাদেরকে দুর্নীতি তুলে করছেন। এটা কিন্তু প্রচন্ড ভাবে দেশের জন্য, আগামী প্রজন্মের জন্য ক্ষতিকারক। যদি আপনার ভোটার आपको क्या लगता है कि जिस तरह का ईडी का रेट पड़ रहा है सिर्फ अगेंस्ट पार्टी की तरफ है, तो ये क्या एक साजिश है? देखिए, साजिश तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। स्पेशली अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो आम आदमी पार्टी के बारे में हम लोग देख रहे हैं 2015 से ये साजिश चल रहा है और इसे रचा जा रहा है। हर दिन एक नया किस्सा लेकर आ जाते हैं, 2 लोग जाके कंप्लेन करते हैं और हमारे नेता को जेल डाल दिया जाता है। देखिए, ये जो मिसयूज़ हो रहा है
ये बहुत एक घटिया चीज़ है। और मुझे लगता है कि राजनीति में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई आपके विरुद्ध बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप उसको उठा के जेल में डाल दोगे जबकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। और ये मैं नहीं दर्शा रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है आप वहाँ भी पढ़ेंगे तो जितने मनगढ़ंत कहानियाँ था ईडी सीबीआई ने जो लिखा था बीजेपी के प्रवक्ताओं के बोलने से, उनके पार्टी से बोलने से, वो सारे आज लोगों के सामने आ रहे हैं और हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे एक एक करके हर साजिश एकदम मुंह के बल गिर रहा है बीजेपी का। सर, इंडिया टुडे आर्टिकल में आता है कि फाइनल ड्राफ्ट में जो प्रोविजन है, आई डोंट नो। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो राय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हम उसका सम्मान तो बहुत करते हैं और सम्मानपूर्वक ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इसके साथ सहमत नहीं हैं। क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि हम लोग देख रहे थे जब प्रोसीडिंग्स चल रहा था कोर्ट का, हर दिन फटकार मिल रहा था ईडी को कि भाई एविडेंस कहाँ है, वेयर इज द एविडेंस, वेयर इज द एविडेंस। कोर्ट बार बार पूछ रहा था और उन लोगों के पास कोई एविडेंस है भी नहीं। और जो एक उन्होंने मनगढ़ा ने कहानी बोला था तथाकथित 2 करोड़ 20 लाख रुपए का घूस का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने सामने से नकार दिया है कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। 100 करोड़ का आरोप लगाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दे दिया कि नहीं भाई ऐसा भी तो कुछ है नहीं, कुछ तथ्य होना चाहिए, कुछ प्रमाण होना चाहिए, आप ऐसे ही उठा के किसी को जेल में नहीं रख सकते हो। और बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोला गया है कि अगर किसी का जांच चल रहा है और आप उसको तब जेल में रख रहे हो तो वो तो पनिशमेंट की इक्वल हो गया ना। पनिशमेंट हम लोग कब मिलते हैं हम लोगों को? जब कुछ आप प्रूफ कर दोगे मेरे अगेंस्ट, मैं कानूनी तौर पे मैं मुजरिम ठहरा जाऊंगा उसके बाद। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ट्रायल जो प्रोसीड्योर है आप इसको ही मेरा पनिशमेंट बना रहे हो और मुझे जोर करके आप जेल में रख रहे हो। ये बहुत ख़राब चीज़ है। सर, मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं मिली, इसका क्या कारण है? देखिए बेल ना मिलने का कारण से भी ये आपको सोचना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ तथ्य प्रमाण नहीं दे पाया ईडी सीबीआई। फिर भी हम लोग बेल के लिए देख रहे हैं, जो भी लीगल एंगल से उसे खंगाला जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से जो जजमेंट आया, जो ऑर्डर आया है कि मनीष सिसोदिया के पास ना 10 रुपए मिला ना उनके पास कुछ है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के पास कुछ है नहीं। तो उसके लिए हम लोग लगता है कि बहुत जल्दी उनको बेल मिलेगा। और देखिए एक चीज़ है कि हम लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, हमारा जो पार्टी है वो शुरू से संघर्ष कर रहा है, हम आखिर तक भी लड़ते रहे हैं। सर, 2024 में सब कोई असर पड़ने वाला है ईडी सीबीआई की वजह से? देखिए अब तो हालत ये हो गया है मोदी सरकार का कि वो अब इलेक्शन को पार करना चाहता है ईडी और सीबीआई के बलबूते पे। खुद उन्होंने ये नहीं बोल पा रहे कि मेरे अपने 10 साल के कार्यकाल में क्या किया है, अगले 5 साल के लिए आप मुझे चुनोगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब उनके पास मुद्दे है ही नहीं, एजेंडा है ही नहीं। अब क्या कर रहे हैं ईडी और सीबीआई को, वो बेचारे भी कुछ कर नहीं सकते, सरकारी कर्मचारी है, उनको जो ऑर्डर मिल रहा है उनको वो करना पड़ रहा है। उनको मिसयूज करके बार बार ये दर्शा रहा है कि उनके पास आज, मोदी साहब के पास आज कुछ है नहीं। ईडी और सीबीआई के अलावा वो उनका जितना इस्तेमाल कर सकते हैं कर ले, हम लोगों को कोई डर नहीं है। क्योंकि आज तक जब से पार्टी शुरू हुआ है 10 रुपए का घोटाला आप सामने ला नहीं पाए, प्रमाण आप कर नहीं पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। सर, इंडिया जो अलायंस बना हुआ है, क्या लगता है तो कारगर रहेगा 2024 के चुनाव के लिए? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मोदी सरकार वापस 2024 में नहीं आ रहा है और यही तो वो डर है जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके लोगों को जेल में डाल दो। जो भी मेरे अगेंस्ट बोल रहा है उसको जेल में डालो। संजय सिंह को जेल में क्यों डाला गया? क्योंकि अदानी के मामले में सबसे ज़्यादा कोई विरोधी आवाज़ अगर बुलंद था वो संजय सिंह का था, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया। चलो, सर, आपको लगता है कि बीजेपी के आने से कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लंघन हुआ है? देखिए बीजेपी एक ऐसा पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो कभी समझा नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को वो मानते हैं, पहला तो ये। दूसरा ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। कुछ ही दिन पहले दिल्ली सर्विसेज एक्ट ऑर्डिनेंस लाया गया, 5 जजों ने जो अदालत ने जो राय दिया उसको पलटने का काम किया एक अध्यादेश ने, एक ऑर्डिनेंस ने। और वो कब लाया गया? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी शुरू हुई, ताकि आप उसको नकार ना सको, और फिर उसे जैसे तैसे करके पार्लियामेंट में पास करके आज वो बिल बन चुका है, आज वो हमारा कानून है दिल्ली सर्विसेज एक्ट। लेकिन वो एकदम ये दर्शाता है कि वो एकदम विपरीत है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसका विपरीत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, और हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म होने को आया है।